हेलो फिजियो डॉक्टर, दिस इज़ डॉक्टर आरती है। सो आज हम लोग बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़ के क्लास 12 के चैप्टर 6 करने वाले हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो चलिए आज हम लोग करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ओके, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज सिंगल स्टैंडर्ड हेलिक्स एंड द बी डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स, सी ट्रिपल स्टैंडर्ड हेलिक्स एंड द डी क्वाड्रपल स्टैंडर्ड हेलिक्स। तो अपना जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स। ठीक है, और ये टू कम्प्लीमेंट्री स्टैंड होता है, उसी के थ्रू ये डीएनए बना होता है, फॉर्म होता है उसका स्ट्रक्चर एक स्पाइरल शेप से। डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स टाइप से स्ट्रक्चर होता है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर अनवाइंडिंग द डीएनए डबल हेलिक्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इज, ऑप्शन नंबर ए इज डीएनए पॉलीमरेज एंड द बी हेलिकेज, सी आरएनए पॉलीमरेज एंड द डी लाइगेज। ऑप्शन नंबर बी हेलिकेज इज द करेक्ट आंसर because helicase is responsible for unwinding the DNA double helix. Okay, next question, question number 3, which nitrogenous base is not present in RNA। क्या कह रहा है, नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। ऑप्शन नंबर ए इज एडेनिन, बी गुआनिन एंड द सी थियामिन, डी यूरेसिल। ऑप्शन नंबर सी थियामिन इज करेक्ट आंसर बिकॉज ये थियामिन क्या होता है, ये ऐसा नाइट्रोजिनस बेस है जो आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए इज नोन एज। कॉपी, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कॉपी करने का प्रोसेस को क्या कहते हैं डीएनए से आरएनए में। ऑप्शन नंबर ए इज रेप्लिकेशन एंड द बी ट्रांसक्रिप्शन एंड द सी ट्रांसलेशन एंड द डी ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है सिंथेसाइजिंग आरएनए फ्रॉम ए डीएनए टेम्पलेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसफर आरएनए tRNA in protein synthesis। Okay, in protein synthesis, option number A is carries amino acid to the ribosome and the B forms the ribosomal subunits and C transcripts DNA to RNA and the D unwinds the DNA double helix। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कैरीज अमाइनो एसिड टू द राइबोसोम बिकॉज जो tRNA होता है ट्रांसपोर्ट अमाइनो एसिड टू द राइबोसोम फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट, मीनिंग इसका क्या मतलब है। ऑप्शन नंबर ए इज each amino acid is coded by a single codon and the B option is each codon codes for multiple amino acid and the C option is amino acids are not coded in the DNA and the option number D is codons are not necessary for protein synthesis। option number B is correct answer, each codons each codes for multiple amino acids। देखिए इसमें क्या होगा, degeneracy in the genetic code means that some amino acid are coded by more than one codon। okay, so each codons codes for multiple amino acid। next question, question number 7, which enzyme is responsible for joining Okazaki fragments during DNA replication। option number A is helicase and the B DNA polymerase and the C ligase and the D primerase। and the option number C is correct answer, ligase, because ligase join the Okazaki fragments on the lagging strand during DNA replication। okay, next question, question number 8 is, the lac operon is a regulatory system in prokaryotes that control the expression of genes involved in the
metabolism of, option number A is lactose, and the B glucose, and the C sucrose, and the D maltose. Option number A, lactose, is the correct answer because the lac operand regulate the metabolism of lactose in prokaryotes. Okay. Next question. Question number 9 is, which of the following is a post-transcriptional modification of eukaryotic mRNA? Okay. कौन सा का मॉडिफिकेशन पूछ रहा है? यूकैरियोटिक mRNA. Option number A is addition of a poly A tail, and the B is formation of an anticodon loop, and the C methylation of DNA, and the D unwinding of the double helix. Then the option number A is correct answer, addition of a poly A tail, because eukaryotic mRNA undergoes post-transcriptional modification including the addition of a poly A tail. चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, इन यूकैरियोट्स वेयर डज ट्रांसलेशन अकर? Option number A is nucleus, and the B ribosome, C mitochondria, and the D endoplasmic reticulum. Option number B is correct answer, ribosome. ट्रांसलेशन जो होता है, ट्रांसलेशन प्रोसेस जो होता है वो यूकैरियोटिक में राइबोसोम पे होता है ना. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग आरएनए फ्रॉम ए डीएनए टेम्पलेट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इज. ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं. चलिए ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन नंबर ए इज डीएनए पॉलीमरेज, एंड द बी हेलिकेज, सी आरएनए पॉलीमरेज, एंड द डी लाइगेज. तो अपना ऑप्शन नंबर सी आरएनए पॉलीमरेज इज करेक्ट आंसर, because RNA polymerase synthesize RNA from a DNA template during transcription. Okay. Next question. Question number 12. What is the function of DNA ligase in DNA replication? Option number A is unwinds the DNA double helix, and the B synthesize RNA primer, and the C join Okazaki fragments on the lagging strand, and the D initiate DNA replication. ऑप्शन नंबर सी. पहले भी ये क्वेश्चन करवा चुके हैं हम. ज्वाइन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13, द लैक ऑपेरॉन इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, ए प्रोमोटर एंड एन ऑपरेटर. व्हाट इज द रोल ऑफ द ऑपरेटर? कह रहा है एक कंपोज जीन से बना हुआ है लैक ऑपेरेंट, तो उसमें एक होता है प्रोमोटर, एक होता है ऑपरेटर. तो इसमें ऑपरेटर का क्या रोल होता है वो हम लोग को बताना. ऑप्शन नंबर ए इज कोड्स फॉर प्रोटीन, एंड द बी इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, एंड द सी रेगुलेट एक्सेस टू द स्ट्रक्चरल जीन, एंड द डी एनकोड्स फॉर टीआरएनए, एनकोड्स ऑफ टीआरएनए. तो ऑप्शन नंबर सी रेगुलेट्स एक्सेस टू द स्ट्रक्चरल जीन. इसका ऑपरेटर का मतलब जो रोल होता है यही होता है, रेगुलेट करता है. ठीक है. Next question, and question number 14. In eukaryotes, what is the function of the spliceosome during mRNA processing? Option number A is adds a poly A tail, and the B removes introns and join exons, and the C initiate translation, and D option is transcribes DNA to RNA. तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिमूव इंट्रॉन्स एंड ज्वाइन एक्सॉन्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट इज द रोल ऑफ टीआरएनए इन ट्रांसलेशन? टीआरएनए का क्या रोल है ट्रांसलेशन में? ऑप्शन नंबर ए इज फॉर्म्स द राइबोसोमल सब यूनिट, एंड द बी ट्रांसक्राइब डीएनए टू आरएनए, and the C carries amino acid to the ribosome, and D unwind the DNA double helix. ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, कैरीज अमाइनो एसिड टू द राइबोसोम. ओके. तो ये अपना ये चैप्टर का चैप्टर नंबर 6 का लास्ट था क्वेश्चन. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो. थैंक यू.